Welcome students, RPC School, online classes. Today we are going to discuss the echoing green chapter, section 3. We have gone through the previous classes and I do hope you have just finished all the questions answered concerning the previous chapters. Today we shall discuss about the echoing green. You see why this word is used in this scenario. As you know, the echoing green is a poem written by William Blake. Firstly, you have to know, before starting any poem, you must have to know the theme about this. What's the summary of this poem? After discussing the summaries, I will point-wise define them and you will come to the key words also concerning this chapter. We shall go through this one, isn't it? So first of all, you open your notebook and write down whatever it is written on the board. Firstly, we shall talk about this poem, why the echoing green. As you see the word echo, echo means क्या होता है? गूंजना, प्रतिध्वनि जिसको हम हिंदी में बोलते हैं. जैसे हम कोई बात बोलते हैं और वो अगर गूंज कर मेरे पास रिफ्लेक्ट होकर आते हैं, उसको हम इको बोलते हैं. उसमें इकोइंग लग गया, वो एक नाउन हो जाता है और ये दर्शाता है कि जो भी हम जिस माहौल में, जिस हरे भरे माहौल में हम खेल रहे हैं, इसमें दिखाया गया ऐसा, इस पोएम में बताया गया है कि जिस माहौल में हम खेल रहे हैं उसका एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है और एक गूंज, उसकी एक रिफ्लेक्शन आता है हमारे ऊपर में, यानी हमारी यादों का रिफ्लेक्शन, हमारे सोच का रिफ्लेक्शन. वो कैसे होता है? वी शैल टॉक लेटर ऑन दिस. एंड ग्रीन, एज यू वर्ड द ग्रीन, हरा भरा, यानी जाहिर सी बात है कि हम ये जो देख रहे हैं जो कोई ग्रीन के बारे में, तो ऐसा किसी हरे भरे जगह का वहां पर डिस्क्रिप्शन किया गया है और वी शैल टॉक अबाउट. सो इन दिस पोएम, पोएट just reflected all the memories by looking the children's activity. बच्चे को एक्टिविटी को हम देखते हुए हम अपने बचपन को याद करते हैं. कैसे? जब हम बच्चे रहते हैं तो हम मैदान में, फील्ड में अपने दोस्तों के साथ खेलते रहते हैं. We just play with our colleagues, with our friends in different boards, different type of games. We play, as you see, in the field, in the ground, so that all children are playing each other's, and there is a man who looks towards their activities. He just think about his childhood. Naturally, जब हम बच्चों को हम खेलते हुए देखते हैं, हम भी कभी-कभी देखते हैं तो सोचते हैं क्या हम बचपन में इस तरह से खेलते थे जिस तरह से आज ये बच्चे सब खेल रहे हैं आपस में. सो वी जस्ट रिकॉल देम एंड वी जस्ट इंटरटेन आवरसेल्फ. हम क्या करते हैं उसमें? अपने आप को आनंदित होते हैं. वी जस्ट गोइंग टू बी वेरी चीयरफुल. बहुत खुशी हमें मिलती है जब हम बच्चों को खेलते हुए देखते हैं. और जब whenever the sunset, the children goes to the laps of their brothers and mothers. जब शाम होती है, बच्चे लौटते हैं अपनी माँ के गोद में, अपनी सिस्टर के गोद में चले जाते हैं, मतलब लेटते हैं. ये मोमेंट दिखाता है कि this poem just reflects that how we were in a cheerful mode whenever we just go through our childhood. When we just cross the age of childhood, which type of feelings we have and now how we are feeling there. So these feelings are totally different.
whenever you become adult, but naturally you will get a less happiness, because that very childhood you are very innocent. कुछ भी नहीं हमें मालूम था. बचपन जब होते हैं, बचपन चाइल्डहुड में होते हैं, तो हमें क्या होता है, हमें कुछ किसी बात का एहसास नहीं होता है, किसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती है, सिर्फ चीयरफुल ही रहते हैं. और दैट वेरी मोमेंट्स, इफ यू रिमेंबर देम, ऑल द थिंग्स फ्लैश बैक like a story. How did I play that very ground? How did I just play with our colleagues? And so many moments just begins in your mind. The same thing is just described in this point-wise figures now. So let's explain about this one. I've just told you the summary. Summary में क्या था? हम जब बच्चों को, मेनली ये थीम ही है इसमें, और इस थीम के जरिए ये भी दर्शाया गया है कि हम अपने जो भी चीज हम देखते हैं सामने, अपने यादों को फिर से हम ताजा करते हैं. और किस तरह से करते हैं, वो सारी बातों को हम पॉइंट वाइज गोइंग टू बी एक्सप्लेन टुडे. फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी पोएम अगर स्टार्ट होता है तो हम उसको एक राइटर्स के नेम के साथ हम जोड़ते हैं उसको, और राइटर्स नेम है written by William Blake, because this poem is written by William Blake. हो गया. Talks about merry sounds and spree. This point just explains about that William Blake just talk about merry sound and spree. जब हम गार्डन में होते हैं, किसी हरे भरे जगह पर होते हैं, जहाँ जस्ट बर्ड्स आर चर्पिंग. चर्पिंग मीन्स क्या होता है, चहचहाना. चिड़ियों का चहचहाना, उसको चर्पिंग बोलते हैं. जब हम गार्डन में होते हैं, खेलते रहते हैं, तो क्या होता है, वहां पर बहुत ही सुंदर सुंदर आवाज आती है चिड़ियों का. डिफरेंट बर्ड्स आर हैविंग डिफरेंट साउंड्स एंड जस्ट मेरी अस. वो हमें खुश करते हैं, हमारे मन को खुश होता है. और मेरी साउंड्स, आवाज बहुत अच्छी निकलती है उनकी, वेरी वेरी मेलोडियस साउंड्स देयर. एंड व्हाट हैपेंस, एंड स्प्रिंग, स्प्रिंग, यू सी द स्प्रिंग, स्प्रिंग जिसको हम लोग बोलते हैं बसंत. यू सी द स्प्रिंग, बसंत, बहुत सुंदर वो मौसम होता है, ना अधिक गर्मी होती है, ना अधिक ठंडा होता है. स्प्रिंग का सीजन जो होता है वो बहुत ही अच्छा सीजन माना जाता है. So we shall talk about the meaning, exact meaning of the spring here. I have just written here the season of the year between winter and summer. ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु के बीच का जो आता है समय, सीजन, उसको हम स्प्रिंग सीजन में लाते हैं. और स्प्रिंग सीजन just takes a lot of happiness, because in this scenario you will look everything is very much cheerful. So the poet William Blake talks about merry sounds in spring. So many spring, in the spring season, many sounds, very very melodious sounds are coming, and just after listening this one, we become very cheerful in that very moments that accompany the children playing outdoors. This movement say whenever children play outdoors. Outdoors means they are not playing at home, they are playing outside. बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, आउटडोर्स में. जैसे हम किसी गार्डन में जाते हैं खेलने, वो आउटडोर ही हुआ, वहीं पर हम खेलते हैं. और जब खेलते हैं उस वक्त वो जो अडल्ट है, ओल्ड मैन है, वो देखकर अपने यादों को फिर से ताजा करते हैं. हम लोग आगे देखेंगे इसमें. एन ओल्ड मैन हैप्पीली रिमेंबर्स. दिस पॉइंट जस्ट एलाबोरेट द आइडियाज ऑफ हिज थॉट, दैट हाउ ही रिकॉल्स, ओल्ड मैन रिकॉल्स द मेमोरीज हाउ ही जस्ट प्लेड विद देयर फ्रेंड्स इन दैट वेरी circumstances. The echoing green is a joyful poem, but naturally, why this is joyful poem? क्योंकि हम
उस मोमेंट्स को, उस खुशियों को देखते हैं, चिड़ियों का चहचहाना, बच्चों का खेलना, एक दूसरे के साथ भाग दौड़ करना, तो आफ्टर लुकिंग दिस ऑल द एक्टिविटीज, it's a, but naturally it is a joyful poem. Chirping birds and playing children remind the elderly observers of their own youth. जैसा मैंने पहले बताया समरी में कि जब भी ये सारी एक्टिविटीज हम चिड़िया, चर्पिंग में क्या होता है, चहचहाना, बच्चों चिड़िया कैसे चहचहाती है उसको हम चर्पिंग बोलते हैं, ठीक है। तो चिड़िया जो चहचहाती है और बच्चे जो खेलते हैं, दो एक्टिविटी यहाँ पर दोनों जुड़ रहा है। दैट इज गोइंग टू बी एडेड नाउ टू थिंग्स, one thing is chirping birds and second one is playing children. So both activities are going to be very highlighted to our minds and we recall them. Melancholy affects the poem when the echoing green becomes the darkening green. इसमें क्या है, हर सुबह का सवेरा, सुबह होती है तो शाम भी होती है और रात में होते हैं, तो हमारे लाइफ में भी इसी तरह खुशी और गम आते हैं, दोनों आते हैं, जिसको यहाँ पर दर्शाया गया है। मेलंकली होता है, मेलंकली का मीनिंग दिया है, ए फीलिंग ऑफ सैडनेस लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। वैसा गम, वैसा तकलीफ, वैसा सौरो जो लंबे समय के लिए हम एहसास करावे, उसको बोलते हैं मेलंकली। तो ये मेलंकली क्या करता है, हमको इफेक्ट करता है द पोएम वे द। अब देखो पोएम का, इसमें राइटर्स ने, पोएट ने क्या लिखा है इसमें कि जब हम इकोइंग ग्रीन बिकम्स डार्कनिंग ग्रीन, 1 मिनट, echoing green becomes the darkening green. When it happens, echoing green होता है जो हमने जैसा पहले बताया कि एक सारी तरफ खुशियां फैली हुई है, उसका प्रतिध्वनि हमें महसूस हो रहा है, और उस मोमेंट में जब वो बदलकर डार्कनिंग ग्रीन का मतलब होता है जैसे सनसेट हो गया, आफ्टर सनसेट देयर इज अ डार्कनेस एंड यू सी नथिंग ग्रीन इज लुकिंग हियर, हमको कोई भी हरा भरा चीज नहीं दिख रहा है, बच्चे सब घर पर आ जाते हैं, तो उस समय एकदम डेजर्टेड लुक लगता है, अंधेरा चारों तरफ लगता है, उसको दर्शाने के लिए यहाँ पर डार्कनिंग ग्रीन वर्ड का यूज किया गया, यानी वो ग्रीन डार्क में बदल जाता है, डार्क में होता नहीं है वो चूंकि लाइट चला जाता, मतलब सन के रेज नहीं आते हैं, सनसेट हो जाता है, ऑब्वियसली नाइट हो जाती है और हमें कुछ भी नहीं दिखता है, उसको ये दर्शाने के लिए यहाँ डार्कनिंग ग्रीन वर्ड दिया गया है, ठीक है। इसका थीम क्या है, नेचर इज वाइब्रेंट एंड डायनेमिक, यानी नेचर हमेशा परिवर्तनशील होता है, जैसे लाइफ में हर चीज परिवर्तनशील है। कैसे, राइट फ्रॉम वी चाइल्डहुड वी बिकम एडल्ट एंड बिकम ओल्ड, तो ये चेंजिंग होना ये प्रकृति का नियम है। आज हम वी आर जस्ट फेसिंग द कोविड-19 वेरी badly and all over the world are facing a lot of problems as you see day to day news. But what you think, will it exist forever? No. The change will come. We will be free. A time will come that COVID-19 will be going to be just eradicated completely. But it will take more time, no doubt, but it will be changed. तो नेचर में ये है, फितरत है हमारी कि हमको जब तक उसमें बदलाव नहीं आएगा, चेंज आना ही आना है, तो वही आता है। इको कन्वेज द मैसेज ऑफ हैप्पीनेस। ऑब्वियसली जब हम खेलते हैं, मैदान में बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, बर्ड्स चर्पिंग करते हैं, तो क्या होता है, हमको हैप्पीनेस फील होता है। तो इको, उससे जो इको प्रतिध्वनि में आती है वो एक हैप्पीनेस को मैसेज देता है। टेकन फ्रॉम सॉन्ग्स, दिस पोएम, फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी द इकोइंग ग्रीन जो पोएम है, ये जो पोएट ने लिया है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस है,
उससे उसका एक्सट्रैक्शन है, मतलब उससे इस सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस से इस कविता को ली गई है। एक क्वेश्चन आ सकता है, फ्रॉम विच इट हैज बीन टेकन, दिस पोएम इज टेकन फ्रॉम विच वन? यू विल हैव टू रीड आंसर सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस। Later on, which in the next classes, we shall go through the questions answer concerning this one. We shall discuss in a more elaborative manners also. Old John, there is also a character in your poem. It is written here, Old John sitting under the oak tree. Oak, you see, what is oak? Oak बोलते हैं बलूत, उसको हिंदी में बोलते हैं ओक को बलूत का पेड़। और it is mainly just found in Asia and other countries also, South Africa, Americas, also it is found. So oak tree के नीचे ओल्ड जॉन बैठा हुआ है और वो अपनी बातों को, जो मेमोरीज हैं, जो उसके यूथ स्टेज में, जो चाइल्डहुड स्टेज में जो उसने खेला था, कूदा था, वो सारे रिकॉर्ड्स वो करता है। नाउ we shall discuss about the keywords which is concerning your poem, and you will get hurt by this one. How is does laugh? Does laugh has been mentioned in your book's poem. Enjoys himself, यानी अपने आप में जो खुशी महसूस करना, हाँ, उसको हम बोलते हैं does laugh according to the in poetry. Awake here means forgets about his worries, यानी अपने चिंताओं को भूल जाना। अब जैसे if we come this stage, we have a lot of problems there, तो हम उसको भूल जाते हैं। क्या हर्डल्स है लाइफ में, कौन सी बातें हैं, we just forget them. तो forget about his worries, अपनी चिंताओं को भूल जाते हैं। कैसे? हम बच्चों को ऑब्जर्व करके कैसे चिल्ड्रंस करते हैं उस दरमियान। Weary, weary means become tired, become tired. You will have to also pronunciation. Pronunciation should also be there. Weary, we said worry, weary. Become tired, become tired. You say not tired, tired. Pronunciations also there. मतलब हमें मतलब थक जाना। जब कंप्लीट थक जाते हैं, जैसे खेलते खेलते बच्चे मैदान में जैसे चिल्ड्रन खेल रहे हैं और थक गए, उसी दरमियान इसको यूज किया गया। वेरी, बिकम टायर्ड। थ्रश, थ्रश क्या? थ्रश इज ऑल्सो अ वर्ड यूज्ड इन योर पोएम। A small or medium sized songbird typically having brown back and loud sound. एक छोटी सी चिड़िया स्मॉल है, मीडियम साइज की है और वो सॉन्ग बर्ड है, यानी गीत गाती है। जैसे कोयल कुकुस कैसे गीत गाती है, इसका भी एक स्पेसिस है, वो गीत गाते हैं। हैविंग ब्राउन बैक, जिसका जो बैक पोर्शन है वो ब्राउन है, एंड लाउड साउंड, और ज्यादा सॉन्ग में ऊंची आवाज। इकोइंग, रिफ्लेक्ट, रिसाउंड, जैसा हमने बताया इको से इकोइंग बना और उसका मतलब था रिफ्लेक्ट। कैसा रिफ्लेक्ट? जो हम खेल रहे हैं, जो माहौल बन रहा है, उसका अच्छा एक रिफ्लेक्शन आना हमारे मन में, वो भी एक इकोइंग कहलाता है। स्प्रिंग, एज यू सी द सीजन ऑफ द ईयर बिटवीन विंटर एंड समर, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, isn't it? Skylark, also a word has been mentioned in your book. That's meaning a kind of songbird. A kind of songbird. Melancholy. Melancholy means a feeling of sadness lasts for a long time. You see, he is looking very melancholy. हमको इसके दूसरे सेंटेंस में हमको इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। As you see, a melancholy word has been assigned. There is no need to be like written here. You can also make other sentence also concerning this melancholy. Melancholy, you are looking very melancholy. तो बहुत ही उदास दिख रहे हो। So this type of sentence you may use in your own words. You will practice it at your home level. So pronunciation is also there. Echoing, going, written by William Blake.
pronunciation, how could you pronounce this one? The echoing brain, written by William Blake, talks about many sounds in spring. There is an updated of this one pronunciation that accompany the children playing out jokes. An old man happily remembers. The echoing green is a joyful poem. Chirping birds and playing children remind the elderly observers of their own youth. This kind of pronunciations you will also practice at your home level, isn't it? Melancholy affects the poem when the echoing green becomes the darkening green. What's the theme? Nature is vibrant and dynamic. Echo conveys the message of happiness, taken from songs of innocence, old John sitting on the oak tree. This type of pronunciations will also be practiced at your home level. Does love enjoys himself. Awake here, forgets about his worries. Weary, become tired. First, a small or medium-sized songbird, typically having brown back and loud song. Echoing reflects resound, spring, the seasons of the year between winter and summer. Like this one, you have to practice. So in next classes, we shall discuss about this one, the next chapter, and concerning this one, we will go through the questions, answers, and whatever the problem you are facing, you will tell, just write down, and that will be discussed whenever the class will be open, and we shall go through this thing. Till then, we shall meet again the next classes. Till then, goodbye and best of luck. Okay? Thanks.